I greet every one of you in the sweetest name of Jesus Christ. प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। The Lord has brought us to the 13th episode of this Church of Jesus Christ series. चर्च ऑफ जीसस सीरीज में 13वें भाग में परमेश्वर आज अपने को लाए। Through these episodes, step by step, the Lord has been revealing the truth of His scriptures in these episodes. तो ये सीरीज के द्वारा एक के बाद एक अद्भुत एपिसोड परमेश्वर अपने को बता रहे। Individually, our life in Christ, how is it that we should build up? How is it we should take care that we are growing and growing in the Spirit? तो अपन आत्मिक रीति से परमेश्वर में दिन ब दिन कैसे बढ़ना वैसा अपन सीख रहे। In this episode, we will be seeing the first epistle of John, the 3rd chapter, 17th to 24th verses of it. आज पहला योहान की पत्री 3रा अध्याय 17 से 24 वचन पर अपन ध्यान करेंगे। In the 3rd chapter, 16th verse, it is written like this: Hereby perceive we the love of God, because He has laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. तो 3रे अध्याय के 16वें वचन में अपन इस रीति से देखते हैं, हमने प्रेम इसी से जान लिया कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। In the Gospel of John, 3rd chapter, 16th verse, John has written, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. तो योहान जी अपने सुसमाचार में 3रा अध्याय के 16 वचन में लिखे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। But here in the epistle of John, John is telling that God laid down His life. He is not telling the Son has laid down the life. पहला योहान ने 3रे अध्याय के 16वें वचन में अपन देख रहे कि उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना प्राण दे दिया, मतलब यीशु मसीह यहाँ पर प्राण दिए बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन परमेश्वर ही अपना प्राण दिए बोल के बोल रहे। John has increased in the knowledge of God. तो यहाँ पर अपन देखे तो योहान जी परमेश्वर के लिए अपना ज्ञान और बढ़ा रहे, वैसा अपन यहाँ पर देख रहे। In the gospel, he has seen that Jesus is the Son of God who has laid down His life. तो योहान 3रे अध्याय में अपन देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी उन्हें अपना प्राण दे दिए, वैसा अपन देखते। In the epistle, he has increased in the knowledge of God, and he has understood it is God Himself who has laid down His life. तो 3रे अध्याय में यहाँ पर योहान जी परमेश्वर के ज्ञान बहुत सारा पाके कि परमेश्वर ही प्राण यहाँ पर दिए, वैसा यहाँ पर बता रहे। We should also, as the years go by, we should also increase and increase and increase in our knowledge of God. तो दिन घट रहे हैं, इसलिए दिन ब दिन अपन परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ने वाले रहना। And when you understand the love of God, automatically you should start a life where you lay down your life for the brethren. तो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने वाले अपन कैसे रहना बोले तो अपन भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने वाले रहना। The more you understand of God, the more you will be willing to lay down your life for your brothers. तो परमेश्वर को जितना जितना अपन समझते रहते उतना उतना अपने भाइयों के लिए अपन प्राण दे सकते। And what does giving the life mean? Take a sword, cut off my head. Is that giving the life? तो भाई के लिए प्राण देना मतलब क्या? छुरा गर्दन पे लगा के गर्दन काट देना क्या प्राण देना मतलब? We find all the 11 disciples of Jesus who have taken the cross upon them every day, and they witness to Jesus in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the ends of this world they give witness to Jesus. तो यीशु मसीह के शिष्यों को अपन देखते हैं कि समरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी की छोर तक भी परमेश्वर का क्रूस उठा के वो लोग चले, वैसा और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए, वैसा अपन देखते। All of them lived for 20 years, 30 years or 40 years, and finally they were killed or martyred. तो परमेश्वर के जो शिष्य है वो परमेश्वर में बढ़ते हुए 20 साल, 30 साल, 40 साल जिए, उतना जी के परमेश्वर के लिए सेवा करते हुए वो लोग हतसाक्षी बन गए। Only John the Apostle lived for nearly 90 years and died a natural death.
तो यूहान जी है, उन्होंने 90 साल तक जी के उसके बाद में उन्होंने मृत्यु पाए। So how did they lay down their life? किस तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर पाए? Day and night, day and night, day and night. They wanted to make Jesus known to the unknown and to edify those who were already Christians. They wanted to make them perfect. रात दिन वो लोग मेहनत करके बहुत सारे लोगों को सुसमाचार फैलाए, और जो भी मसीह में है, जो ईसाई है, उनको प्रभु में और बढ़ने के लिए उन लोगों उनको प्रोत्साहन दिए। And after the Jewish period was translated and transitioned into the Gentiles, also being called to the blessings of the gospel. यहूदियों में ही नहीं, लेकिन अन्य जातियों में भी सुसमाचार फैला वो दिनों में। The way in which we should live for Christ is given by the example of the life of Paul the Apostle. वो लोग परमेश्वर के लिए इतना जिए, बोलता है आग पाके ऐसा जिए परमेश्वर के लिए कि सब जने जाने, और अपन भी उनको जान के चलने के लिए सहायता कर रहे। Paul said, "It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me." कैसे स्थिति में उन लोग आए, बोले तो जीरा सो मैं नहीं हूँ, मसीह ही मुझ में जीरा है, बोले वो स्थिति तक वो लोग आए। And he was able to write to the Corinthian church, "Be you followers of me as I am the follower of Christ." तो प्रेरित पौल कोरिन्थियों की कलीसिया को कैसा लिख रहे, बोले तो मैं मसीह की चाल चला हूँ, वैसे ही तुम भी मेरी सी चाल चलो, बोल के उन्होंने बोल रहे। Day and night he spent time stitching tents. तो रात दिन प्रेरित पौल जी वो टेंट का काम करते थे, वो सीते थे। And at the same time he carried out a ministry that turned the world upside down. तो उसी तरह से वो लोग काम करते हुए, जीते हुए भी पृथ्वी को उथल पुथल करने वाले वो लोग बने। I want every one of you hearing this message to do so. You work for your own livelihood and at the same time be burdened for the church of God. ये संदेश सुनने वालों से भी क्या बोल रहे, बोले तो अपना काम करते हुए भी प्रभु में बढ़ना, प्रभु का सुसमाचार फैलाना बोल के बोल रहे। So the laying down of your life for the brethren means living for the unsaved people and praying for the saved people for their perfection. भाई के लिए अपना प्राण देना, बोले तो जो कोई भी प्रभु को अभी स्वीकार नहीं करे उनको सुसमाचार सुनाना, और जो ईसाई है उनको और प्रभु में बढ़ाना। So we should lay down our life for the brethren. तो भाइयों के लिए अपन प्राण देने वाले रहना, This is the true Christian life. यही सच्चे ईसाई का जीवन है। You work for your own livelihood अपने हर दिन के गुजारे के लिए अपन काम करते हुए, and also being mindful of the church, of the children of God. तो परमेश्वर के प्रजा के लिए या कलीसिया के लिए अपन श्रद्धा पाके रहना। In the 17th and 18th verses of this chapter, तो ये अध्याय में 17 और 18 वचन अपन देखे तो, "But whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." पर जिस किसी के पास इस संसार की संपत्ति हो और वहाँ अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। John is more than 90 years old. तो यूहन्ना जी 90 साल से भी ज्यादा उम्र पाके हैं सवाल है। In the regions of Asia, the Revelation tells of 7 churches. To all these churches, the old man was going from one place to another. 7 churches he was going there and ministering the word of God. तो आसिया खंड में ऐसा 7 कलीसिया को एक चर्च को जाके उनको मिलते परमेश्वर का वचन उनको प्रचार करते हुए यूहन्ना जी आ रहे। He didn't have a cycle, scooter or a car or a plane. तो उनके पास सफर करने के लिए साइकिल, स्कूटर, कार या एरोप्लेन नहीं था। He was so weak he could not even walk. 90 ఏళ్ళు వయసు కలిగి చాలా బలహీనమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉండేను, నడవలేనటువంటి స్థితిలో ఉండేది। तो 90 साल की उम्र में वो बहुत कमजोर थे, चल नहीं सकते थे, वैसे स्थिति में थे। Then what did the believers do? They put him on their shoulders and carried him from one church to the other church. तो वो कलीसिया वाले क्या करते थे बोले तो उनको कंधे पे उठा के एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में उनको सुसमाचार परमेश्वर का वचन बताने के लिए लेके जाते थे। And to which church is he writing? People who have believed in Jesus for 20-30 years old. To them he is writing this epistle. तो
ये योहान जी किसके लिए ये पत्रियां लिख रहे बोले तो ईसाई है, 20, 25, 30 साल से ईसाई है, उनके लिए ये पत्रियां उन्होंने लिख रहे। And he's telling them, little children, let us not love in word and tongue, but by deed and by truth. तो ऐसे ईसाइयों को योहान जी बोल रहे, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। In the 17th verse, it is written that you are allowed to have the good of this world. तो 17वें वचन में अपन क्या देख रहे बोले तो इस संसार की संपत्ति पाके है आप बोल के देख रहे। God is not prohibiting you from having this goods. तो परमेश्वर आपको संपत्ति के बिना नहीं बनाए ना बोल के योहान जी बोल रहे। So you have to work to come to that level of blessedness of having enough for yourself. तो अपने को जो जो चाहिए वो संपत्ति कमाओ बोल के उन्होंने बोल रहे। But also at the same time, not to close your bowels of compassion when any other brother or sister is in need. तो उन्होंने बोले जो भी कोई भी कंगाल है उनके ऊपर तरस खाए बिना तुम नहीं रहना बोल के योहान जी यहाँ पर बता रहे। In 17th verse it is said, a brother. 17वें वचन में अपने भाई को कंगाल देखकर बोल के है। It is not written brothers and entire church. तो वहाँ पर और बहुत सारे भाइयों को या कलीसिया में है सबको बोल के नहीं लिखा है। Let me tell of my own example, पास्टर जी उनके जीवन में हुआ सो एक उदाहरण बता रहे हो, आप सुनेंगे so that you also can understand what the scripture teaches us and what God wants of us. तो उदाहरण के द्वारा परमेश्वर का वचन अपने को क्या सिखाना चाह रहा है उसके द्वारा अपन सीखेंगे। My wife gets a pension and most of our living is upon her pension. तो पास्टर जी के पत्नी को पेंशन आती, वो पेंशन से उनका गुजारा होता। And we set apart every month for the requirements of certain people in our lives. तो उनके जीवन में जो जिसको जरूरत है उनको थोड़ी सहायता करते हुए उन्हें आ रहे। Recently we came across one young man who was paralyzed lower body entirely. तो कुछ दिन पहले एक नौजवान ये कमर से नीचे तक उसको वो जो पक्षपात बोलते ना वो आया वैसा उनको मिले। He got a neck injury because of a road accident. तो एक रोड के एक्सीडेंट में उनको यहाँ गले के पास में उनको हड्डी टूटी। And about 4 months back he gave a WhatsApp message. तो 4 महीने पहले व्हाट्सएप में एक मैसेज पास्टर जी को व्यक्ति भेजे। For 1 crore of rupees, there is a special operation being done in some place Indonesia by doctors. तो अगर 1 करोड़ रुपए लगाए तो इंडोनेशिया में जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा मेरा ऑपरेशन होके मैं ठीक हो सकता हूँ बोल के ऐसा मैसेज भेजे। Some 2,000-3,000 rupees to send to this account is what it is written there. Bank account, IFSC code, everything. तो 2-3 हजार रुपए मेरे अकाउंट में डालो बोल के उनका अकाउंट नंबर वो सब भेजे वो व्यक्ति। I first and try to find out whether it is true or not. तो पहले वो सच है या नहीं बोल के उसको जाने। There's some stem cell therapy to cure this paralysis. I found that it is false. तो उन्हें जो ऑपरेशन करने का है वो सच्ची में है क्या बोल के मारे तक वो नहीं हो सकता बोल के है। There are companies who will make a business of such patients. तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं ऐसा धोखा देके लोगों को लूटने वाले ऐसे बहुत सारे कंपनियां ये दिनों में हैं। And the company who was handling this patient's case, when I found out that it is a fake company. तो जो कोई भी भाई को बोले कि 1 करोड़ रुपए अगर तुम खर्चा करे तो तुम अच्छे हो जाते बोल के, तो वो धोखेबाज है, वो धोखा देने वाले है बोल के मालूम कर लिए। So I understood that money, even if I give it, it is going to go waste. तो पास्टर जी क्या सोचे बता, अगर पैसे दिए तो भी वो व्यर्थ हो जाते बोल के सोचे। And I did not have the courage to tell that boy this is all wrong. तो भाई जो आप जो करने जा रहे हैं वो सब धोखा है, ये जो कंपनी वाले जो है वो धोखा देने वाले हैं बोल के बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुई। That boy is a Christian, young boy. वो नौजवान ईसाई है। But so I was sending some video, WhatsApp messages and this episodes to him. तो थोड़े वीडियोस परमेश्वर के वचन के थोड़े भाग व्हाट्सएप में भेजते हुए आ रहे। He became very angry at me. इस तरह से भेजे तब वो व्यक्ति को पास्टर जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। He told very harsh words at me. तो बहुत दुखी होने की, दिल टूटने की बातें वो नौजवान पास्टर जी से बोले। But in the love of Jesus, I continued speaking with him. तो प्रभु के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम की वजह से वो नौजवान से बात करते हुए ही आ रहे। I told him, when you written that I had searched and found that treatment and that company which deals with these cases are all fake. तो बोले
हे भाई तू जब मैसेज डाला ऑपरेशन के लिए तभी मैं मालूम कर लिया कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये धोखा देने वाले लोग हैं बोल के बोले उनसे। I have interacted with doctor friends of mine and they also do not know about that. तो पास्टर जी डॉक्टर है इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों से, उनके जो दोस्त है वो डॉक्टरों से भी उन्होंने सलाह लिए कि ऐसा हो सकता है क्या, तो उन्होंने बोले ऐसा इलाज कहीं भी नहीं है बोल के वो लोग बताए। Then I took an interest in his case and I started studying whether there was such treatment anywhere in India. तो जो व्यक्ति को जो हुआ उसके लिए अपने भारत देश में कहीं तो भी इलाज है क्या बोल के उसको ढूंढना आरंभ करे। Then I was able to find a hospital in Delhi that does that operation. तो दिल्ली में ये बीमारी के लिए एक इलाज है बोल के मालूम कर लिए। About 15 to 16 lakhs is the estimate. 15 से 16 लाख तक खर्चा होता वो इलाज के लिए। I told him that link and he contacted the hospital and they agreed to take him up as a patient. तो वो लिंक के बारे में मालूम करके उनको फोन करके वो सब बातचीत हो गई। उसके बाद में वो लोग केस को लेते बोल के बोले। I explained my financial situation to him. तो पास्टर जी उनकी आर्थिक परिस्थिति वो नौजवान से बोले। But I said we will pray and we will try to give not a one-time amount we will send to you. तो हे भाई हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमसे जितनी हो सकती उतनी हम तुम्हारी सहायता करेंगे बोल के बोले। We were able to give a small amount to his account. तो उनके अकाउंट में थोड़ा सा उनको सहायता कर सके। He became so happy. तो ये होने के बाद में वो नौजवान बहुत खुश हुआ। Thank you, Uncle, for your love. Please pray for me like that. He was very happy with me. तो पास्टर जी जो करे उसके लिए वो भाई बहुत खुश हुए। पास्टर जी आपको धन्यवाद, आप जो सहायता करे हमारे को उसके लिए धन्यवाद बोल के प्रभु को धन्यवाद करते हुए बहुत खुश हुए। He is now, I think, in Delhi. वो भाई अब दिल्ली में है। Please pray for him. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। But while I was interacting like this with this lad, ये बातें उनसे बात करते समय my heart was filled with great pain. तो ये बातें बोलते समय उनके हृदय में बहुत भयंकर रीति से दर्द को महसूस करे पास्टर जी। I was filled with a shame. बहुत शर्मिंदगी हुई। Why? Because Peter and John, what did they tell? Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. तो यूहन्ना और पतरस वो मंदिर के पास गए, तब एक जन्म से ही लंगड़ा था। और उसको बोले सोना चांदी तो तुम्हें देने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से अभी तुम उठो और चलो फिरो बोल के बोले। I am asking the Lord to give me that power. प्रभु उनको दिए सो अद्भुत सामर्थ हमें भी दो बोल के पास्टर जी प्रार्थना कर रहे। Love can be of the word and in tongue. प्रेम बातों से और जबान से होगा। This is now frequently seen everywhere in the churches. तो ऐसे प्रेम को अपन बहुत बार अपने कलीसिया में अपन देखते रहते। Love in the word बातों से प्रेम करते and love in the tongue, but not in the heart. जीभ से प्रेम कर रहे हैं, हृदय में प्रेम नहीं है तो भी। This has to go. ऐसा प्रेम अपने पास नहीं रहना, वो अपने पास से चले जाना। We have to love in deed. तो अपन कामों के द्वारा प्रेम करने वाले रहना। So this is the type of love, a love that is filled with the deeds that we are asked to be filled with. तो कामों से जो प्रेम दिखाते हैं वो प्रेम से अपन भरपूर रहना बोल के प्रभु अपने से आशा कर रहे हैं। And he is not telling everyone around us will be lacking something or the other. We can't take care of everyone, but at least one. तो अपने आजू बाजू में है सब बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ घटी, किसी ना किसी की परेशानी रहती, लेकिन परमेश्वर सबको देखो नहीं बोल रहे, लेकिन किसी ना किसी एक को आप देख के मेरा प्रेम दिखाओ, उनको प्रेम दिखाओ बोल के प्रभु बोल रहे। And now when we start doing what God commanded us to do, जिस समय परमेश्वर जो आपने करने के लिए आज्ञा दी है तब अपन उसको प्रारंभ करते हैं। in the 19th and 20th verses we can find what will happen. 19 और 20वें वचन में उस तरह से प्रेम करने से क्या होता है वो देख सकते हैं। And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. For if our heart condemn us not, God is greater than our heart and knoweth all things. इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष लगा देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ताड़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। When we start loving our brethren,
जिस समय भाई से प्रेम करना अपन आरंभ करते, we know that we are doing the will of God in our lives. अपने जीवन में अपन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे वैसे अपन मालूम करते। We know we have got a pure conscience that we belong to the truth. जब अपने हृदय में ऐसी सोच आती कि अपन सत्य के संबंधी है, बल्कि वो सोच अपने हृदय में उत्पन्न होती। And also our hearts will be assured before Him. Our hearts are also assured. अपना हृदय भी उनके सामने दृढ़ता से रहते। But in spite of loving according to the will of God, our heart will be condemning us. See, you did not help that lady, you did not help that boy, you did not do this, you did not do that. तो किसी भाई को, किसी को अपन सहायता कर सकते और अपन नहीं करे तो तब अपना हृदय अपने पे दोष लगाता कि फलाने बहन को वो जरूरत थी, फलाने भाई को जरूरत थी, तुम नहीं करे बोल के अपना हृदय अपने ऊपर दोष लगाता। Our heart will be pricking us, but God is greater than our heart. तो अपना हृदय अपने ऊपर दोष लगाए तो भी अपने हृदय से भी बड़ा परमेश्वर है, Because God knoweth all things. क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है। 3 times the Lord Jesus asked Peter, Simon Bar-Jonah, loveth me more than these? 3 times he asked him. तो 3 बार यीशु मसीह पतरस से पूछे, हे सिमोन तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या बोल के। And the 3rd time he said, Lord, you know all things. तो तीसरी बार पतरस बोलते कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं ना प्रभु बोल के बोलते। Thank God because he knows us through and through. परमेश्वर को अपन बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। Now, another 2 verses ahead when we see what happens if our heart is not accusing us, but it is saying, good, you are having confidence towards God. तो अपना हृदय अपने ऊपर दोष नहीं लगाता और अपने हृदय की अपन प्रशंसा करते, तब कैसा रहता अपन देखेंगे। In 21 and 22 verses we find, Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence towards God. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. 21 और 22वें वचन में अपन देखेंगे, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने यह होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वहाँ हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। See, what is lacking in the church nowadays is the prayers are being made, but answers are not being received. आजकल कलीसिया में क्या हो रहा बोले तो बहुत सारी प्रार्थनाएं तो हो रही, लेकिन वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। In the early church we find that they sold everything, they gave to the poor, they gave to those who are in need, and thus way their hearts were not condemning them in any way. आदि के कलीसिया में क्या होता है बोले तो वो लोग प्रार्थनाएं भी करते थे, उनके जो कोई भी सहायता करने की जरूरत रहती सबको सहायता करते थे, पैसों की तरह, प्रार्थना की तरह, किसी भी तरह से, इसलिए उनका हृदय उनके ऊपर दोष नहीं लगाता था। Even while they are still in prayer, the earth used to quake and answers used to come. उस तरह से वो लोग प्रार्थना करते समय ही भूकंप आके उनके प्रार्थना का जवाब मिलता था। See, we should also know the power of our God. तो परमेश्वर कितने सामर्थ्य है अपन मालूम करने वाले रहना। And only when we are doing His commandments, He will answer us. Whatsoever we ask, He will give. तो उस तरह से अपन परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो अपन जो भी मांगते हैं परमेश्वर देने के लिए तैयार है। The Lord wants you and I to first do the commandment which He has given. Love your neighbor as I have loved you. तो पहले परमेश्वर अपने को जो आज्ञा दी है वो आज्ञा का अपन पालन करने वाले जैसे रहना। कौन सी आज्ञा बोले तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। And the commandment in the 23rd verse is repeated. This is the commandment that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandment. तो 23वें वचन में इस तरह से कहते हैं, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। Repeatedly, as if these fellows are mad. They have been saying in the 14th, 15th and 13th chapters of John, and again here in the entire epistles of John, John the apostle is repeatedly saying only the same thing again and again, love one another. तो यूहन्ना जी 13, 14, 15 और 16वें अध्याय में बार और उनके पत्रियों में भी बार उन प्रेम के बारे में ही बात करते हुए आ रहे। Not only that, when that old man was being taken from one church, from Ephesus to Smyrna church, वहाँ पर यूहन्ना जी को वहाँ पर कलीसिया के विश्वासी अपने कांधे पर रख के एफेसी से सुरमा को लेके जा रहे थे तब the church has come and he sits down.
तो सारी कलीसिया इकट्ठी होती है, तब आके उन्हें वहाँ पर बैठते। And only one thing he will say, beloved, love one another. तो वहाँ पर बैठ के उन्हें एक ही एक बात बोलते, हे प्रियो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। This is his message again and again, again and again, again and again. तो यही संदेश को उन्हें बार बार बोलते आए। And when asked, why are you saying only this? अब तुम क्यों ये बार बोल रहे बोल के पूछे तो? Because this is the only commandment we have been given. तो उन्हें क्या बोलते, बोले तो आपने को दिए गए सो एक ही आज्ञा यही है ना बोलते। Now, if you keep his commandments, the blessing which you get in the spirit is written in the 24th verse. जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपन मानते हैं, तो उनसे मिलने वाले आशीर्वाद 24वें वचन में लिखे हैं। And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वहाँ उसमें और वहाँ उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वहाँ हम में बना रहता है। Creator of heaven and earth. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी की रचना करे सो परमेश्वर है। Let the light be, let this be, let that be. वो बन जाओ, ये बन जाओ और उजाला हो जाओ बोल के अपने बातों के वचनों शब्दों से बोले सो वो परमेश्वर। Where is he? उन्होंने कहाँ पर है? अपने में बने हैं, And we in him. अपन उनमें बने हैं। And how can you know this? तो किस तरह से अपने को मालूम होता? By the Spirit which he has given us. वो उन्हें दिए सो अपने को आत्मा के द्वारा आप उन्हें मालूम कर सकते। So church, this is what God wants of you and me. प्रिय कलीसिया, आपसे और मुझसे परमेश्वर आशा करे सो यही है। Paul was able to say, it's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. प्रेरित पौल जी बोल रहे कि अभी जी रहा सो मैं नहीं हूँ, मसीह ही मुझ में जी रहा है बोल के उन्होंने बोल रहे। And the believers in the churches which was being ministered to by John the Apostle, they can say, it's no longer I that liveth, but God the Father that is living in me. योहान जी जो सेवा करते थे उसमें से ईसाई भी अभी हम जी रहे सो हम नहीं, पिता परमेश्वर ही हम में जी रहा बोल के वो लोग बोले। That is what John is telling the disciples, and he is writing it to you and me. तो प्रेरित योहान जी वही उनके शिष्यों को बोले, वही अपने लिए भी लिखे। The message for today can be summarized like this. आज का संदेश इस तरह से अपन बोल सकते हैं, Receive the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पाना, be made as a new creature in Christ, मसीह में नई सृष्टि अपन बनना, be able to love the brethren, at least one, एक भाई से तो भी प्रेम करने वाले अपन रहना, and have a conscience that is clear towards God. तो परमेश्वर के सामने निंदा रहित है सो गवाही पाके रहना, Having a prayer answering relationship with God. परमेश्वर से हर प्रार्थना का जवाब पाने वाले अपन रहना। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Beloved Father, प्रिय पिता, you have spoken to us of these verses. प्रभु ये वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। Only you can teach us what the meaning is. प्रभु सच्चे अर्थ को सिर्फ आप ही हमें बता सकते। It is your Holy Spirit that can write upon the hearts, upon our hearts. पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय को छू सकते। Help us to love the brethren. प्रभु हमारे भाइयों से प्रेम करने वाला मन हमें दीजिए। Help us to pray for the brethren. कई भाइयों के लिए प्रार्थना करना हमें सिखाइए। Help us to have answers to those prayers of us. प्रार्थना करने से हर प्रार्थना का हम जवाब पा सके वैसा हमारी सहायता की। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। Amen. आमीन।